गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੇਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਸ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਇਹੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਜੇ, ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਆਪਰੇਟਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਪਰ ਦਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ 1 ਮੋਲਰ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ। ਦੋਨੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਐਮੀਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਯੂਟਿਊਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਯੂਟਿਊਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਹ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਵੈਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਰੇਟਸ, ਕਾਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਪਰੇਟ। ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨੀਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼
ये ਬਣਤਰ है इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की। सो पहला क्वेश्चन अज आप यही करांगे कि इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की हुंदा, इहदी कंस्ट्रक्शन किद्दां दी हुंदी है, इहदे च की चीज़ां हुंदियां, किनूं असीं एनोड कहने आ, किनूं कैथोड कहने आ, कित्ते ऑक्सीडेशन हुंदी, कित्ते रिडक्शन। अज ये सारा क्लीयर करना क्योंकि यही बेसिक सैल आ जिहदे बेस ते अपना अगला पूरा जिहड़ा टॉपिक है डिपेंड करता। सो कंस्ट्रक्शन हुण मैं दुबारा तो तुहानूं दस्सण लगी हाँ। कंस्ट्रक्शन इदा आ कि असीं दो बर्तन यूज़ करने हैं। पहली गल तां सेम वैसल नहीं लैना। सो पहला वैसल असीं जिंक वास्ते लिया, जिहदे विच जिंक की रॉड नूं जिंक के ही सोल्यूशन च डिप कर दिता। जिंक का सोल्यूशन मतलब जिंक सल्फेट 1 मोलर, मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 1 मोलर, और पानी च घोल के इहनूं तैयार कर लिया। जिहड़ी चीज़ आपां इत्थे इलैक्ट्रोलाइट, ये इलैक्ट्रोलाइट आ। इलैक्ट्रोलाइट उन्होंने कहते जिहड़ा आइंस विच की हो जाता रहे डिजोल्व हो जाता, टुट जाता है। सो जे आपां उदा खोल के लिखीए इहदा मतलब इहदे विच किहड़े-किहड़े आइंस होणगे, जिंक +2 एंड SO4 किहड़े आइंस होणगे -2। दूजा इस तरह असीं ले लिया कॉपर का सैल। कॉपर की रॉड नूं कॉपर के ही घोल दे विच डुबोना आ 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਨਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਪਰ +2 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਥੋਡ। ਹੁਣ एक इलैक्ट्रोड नूं असीं एनोड का नाम दिता, वो भी मैं दसूँगी। एक नूं की कीता कैथोड बनाए। ये दो नूं की कहंदे इलैक्ट्रोड्स, जिहड़ियां पत्तियां हुंदियां ना इहनूं असीं की बोलदे हां साइंस की लैंगुएज इलैक्ट्रोड्स है ये। सो जिहड़ी आ इलैक्ट्रोड है इहनूं असीं एनोड बोलदे जिंक दी। या जिंक ने हुण सानूं कन्फर्म आए इस सैल दे विच कि जिंक ने इलैक्ट्रॉन की करने रजे लूज करने हैं, कॉपर ने की करने हैं गेन करने हैं। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन लूज करदा वो प्रोसैस की हुंदा ऑक्सीडेशन का। सो ऑक्सीडेशन का प्रोसैस है जिहड़ा वो किहदे ते हुंदा एनोड ते। सो एनोड नूं असीं याद रखण लई A O दे नाल याद रखांगे कि एनोड ते हमेशा की होएगी ऑक्सीडेशन का प्रोसैस चलूगा। और जदों असीं सैल बनाउणा भी आ मोहरे असीं एनोड बनाउणी आ, ऑक्सीडेशन दिखाउणी, लॉस दिखाउणा। पहला लॉस होएगा उहदे नाल ही दूजी इलैक्ट्रोड किहड़ी बनाउणी आ गेन दी बनाउणी, जिथे रिडक्शन होएगी। सो जिहड़ी रिडक्शन करूगी इलैक्ट्रोड, जिथे गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होएगा वो किहड़ी इलैक्ट्रोड ते होएगा, उहनूं की कहांगे आपां कैथोड। सो सी दे नाल किहनूं जोड़ लो आर, सी दे आर याद रहूगा तुहानूं। कैथोड ते रिडक्शन हुंदी है, एनोड ते की हुंदी है ऑक्सीडेशन हुंदी है। दूजी गल एनोड नूं असीं नेगेटिव इलैक्ट्रोड का नाम देवांगे और कैथोड किहड़ी इलैक्ट्रोड होगी पॉजिटिव। ये भी कन्फ्यूज नहीं करना। इनू नैगेटिव का नाम क्यों दिता राजे, क्योंकि जिंक ने इलैक्ट्रॉन्स की करने लूज करने हैं, इत्थों इलैक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे हैं और निकल के जाने कितने तार के रस्ते इधर नूं जाने हैं। सो इस करके जिथे इलैक्ट्रॉन्स निकलणगे वो नैगेटिव चार्ज होगा इलैक्ट्रॉन ते, तो वो इलैक्ट्रोड की नज़र आएगी नैगेटिव नज़र आएगी, बिहेव करेगी। जिथे इलैक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे गेन करूगा इलैक्ट्रॉन्स नूं खत्म कर दूंगा, वो इलैक्ट्रॉन्स का मतलब खत्म हो जाएंगे नैगेटिव चार्ज, तो उत्थे किहड़ा चार्ज शो करता आपां पॉजिटिव। सो असीं याद रखना भी जिथे इलैक्ट्रॉन निकलते हैं ना इधरों निकलते हैं, जाते कि कापर वाले पासे जाते हैं, क्योंकि जिंक ने लूज करने, कॉपर ने वही इलैक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। सो ये नैगेटिव इलैक्ट्रोड बन गई, ये किहड़ी बन गई पॉजिटिव इलैक्ट्रोड बन गई। ठीक है। इस तो इलावा असीं की लाया आ साल्ट ब्रिज लाया। ਇਹਦਾ ਕੰਮ मैं दसूँगी ਤੁਹਾਨੂੰ। फिलहाल ਇਹਦਾ ਕੰਮ यही है कि दो सोल्यूशनस ਨੂੰ टच ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਫ ਸੈਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈਲ, ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮੋਰੇ ਬਣੂਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਐਨੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। सो हुण इस ऑक्सीडेशन हाफ सैल, पहले सैल का नाम है ऑक्सीडेशन, इनू अद्धा सैल कहा जाता। अद्धा सैल किसी काम का नहीं है ना ही अद्धे सैल की कोई वर्किंग होंगी आ, इसलिए हाफ सैल जोड़ के पूरा सैल बन सकता अपने को। सो ऑक्सीडेशन हाफ सैल रिएक्शन की हो रहा है, जिंक तुहाडे कोल सॉलिड पत्ती सीगी, हौली हौली वो की करनी शुरू हो जूगी, खुरनी शुरू हो जूगी। सो जिंक लूज करूगी इलैक्ट्रॉन, जो लॉस करने हैं तो जिंक के उत्ते किहड़ा चार्ज आ जाऊगा +2, ਇਹਦਾ मतलब दो इलैक्ट्रॉन ਵਿੱਚੋਂ निकल गए, प्लस ਉਹੀ दो इलैक्ट्रॉन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ शो कर देने ਆ। इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन शो हो गया, ये रिएक्शन ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ स्टार्ट हो जाएगा। उस तो बाद ये इलैक्ट्रॉन्स उपरों ਦੀ घूम के जाएंगे दूजी इलैक्ट्रोड वाल, ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है रिडक्शन। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ रिडक्शन हाफ सैल। रिडक्शन हाफ सैल 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ गेन ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ गेन कौन करूगा जिहदे कोल कमी होगी। सो आयंस हमेशा गेन करते हैं।
सॉलिड चीज़ हमेशा खुरदी आ, सो ये भी ध्यान च रखियो, उल्ट नहीं लिखना। कॉपर प्लस 2 आयंस प्लस 2 इलैक्ट्रॉन ने गेन करके कॉपर की हो जूगी सॉलिड बनन लग जाती है, यानी इसे पत्ती के उत्ते कॉपर की होने लग पैंदी है, डिपोजिट होने लग जाती है, इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये दो रिएक्शन तुहाडे प्रोसैस दे विच चलते रहणगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, ये दोहे की होंगे तुहाडे मेन रिएक्शन। फिर तुसीं ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं दोवां नूं जोड़ के, जदों आपां दोवां नूं जोड़ांगे इलैक्ट्रॉन्स कैंसल हो जाएंगे, बाकी इक्वेशन साडी बन जूगी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एरो जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड। सो ये इक्वेशन साडे कोल ओवरऑल सैल दी रिएक्शन दी इक्वेशन होएगी, जिहड़ा रिएक्शन जिहड़ा कंटिन्यू हो गया। हुण चलते चलते रिएक्शन च की होएगा कि जिंक अपना वेट लूज करना स्टार्ट कर देगी और जिंक की पत्ती जिहड़ी है खुरना शुरू हो जाऊगी। जदों ये खुरूगी तो की होएगा, जदों ये खुरूगी रजे तो इलैक्ट्रॉन तो उपरों दी परे चले जाएंगे, जदों ये खुरना आ रिएक्शन होना, जिहड़ा मैं इत्थे लिखिया जिंक सॉलिड टुटूगी, टुट के किहड़े आयंस बनणगे जिंक आयंस, इस घोल दे विच किहड़े आयंस एंटर करने शुरू हो जाएंगे नवें जिंक आयंस। सो कंसनट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी किदी जिंक आयंस की। सो ये रिएक्शन च होएगा कि कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयंस स्टार्ट इंक्रीजिंग, किधर इंक्रीज करन लग जूगी इधर, फिर ही साल्ट ब्रिज काम करना स्टार्ट करूगा जदों कंसनट्रेशन हिलूगी। सो जदों जदों रिएक्शन स्टार्ट होएगा जिंक की पत्ती खुरूगी और जिंक आयन की कंसनट्रेशन इत्थे ज़्यादा होनी शुरू हो जाऊगी पहलां दे नालों, यानी पहलां तां सल्फेट ते जिंक आयंस बराबर हुंदे आ, पर जदों पत्ती खुरदी है तो हुण जिंक आयन की कंसनट्रेशन सल्फेट तो की हो जाती है वध होनी शुरू हो जाती है। दूजे पासे भी यही प्रोसैस हो जाता। दूजे पासे की हुंदा, जदों अपने कोल कॉपर जिहड़ी है वो जमनी शुरू होगी, जमन लगे रिएक्शन की करना पऊगा, आ जिहड़े कॉपर आयंस होणगे सोल्यूशन च इन्हां ने दो दो इलैक्ट्रॉन पकड़ने आ, पकड़ के जमना शुरू कर देना। सो हौली हौली कॉपर आयंस की कंसनट्रेशन घटनी नहीं शुरू हो जाएगी, ये खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सो कॉपर आयंस की कंसनट्रेशन की होने लग पैंदी है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है ज्यों ज्यों रिएक्शन की करता शुरू करता। जे आपां साल्ट ब्रिज ना लाइए तो साडे सैल की वर्किंग थोड़ी देर बाद की हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो हुण बारी आ जाती है कि साल्ट ब्रिज की काम करता। सो नैक्सट क्वेश्चन नाल ही मैं स्टार्ट कर दूँगी, जिहड़े आपां दो क्वेश्चन अज करने आ, उहदा दूसरा क्वेश्चन है कि वट इज साल्ट ब्रिज एंड वट इज इट्स फंक्शन। सो फंक्शन इत्थे क्लीयर हो गया। मान लो मैं हले साल्ट ब्रिज बारे दस्सिया नहीं है, सपोज असीं नहीं लगाया, अगर असीं साल्ट ब्रिज यूज ही नहीं किया तो फिर हौली हौली की होगा, ज्यों ज्यों पत्ती खुरी जाऊगी इत्थे जिंक आयन बधने शुरू हो जाएंगे और इत्थे कॉपर आयंस की होने शुरू हो जाएंगे, घटने शुरू हो जाएंगे। जो जिंक आयन ज़्यादा बढ़ गए ने होर लूज करना बंद कर देना, उन्हें गेन करना बंद कर देना, कुल मिला के रिएक्शन की हो जाना स्टॉप हो जाना। कहण दा मतलब जे सैल नूं असीं चाहुंदे हां इहदी वर्किंग रुके ना, कंटीन्यूअसली चलती रहे, फिर सानूं की करना पऊगा, ये कंसनट्रेशन हिलनी नहीं चाहिए। पर इहदे लई की कर सकते हैं आपां, इहदे लई असीं की यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज। सो हुण मैं फंक्शनस ऑफ साल्ट ब्रिज एक्सप्लेन करूँगी। पहला फंक्शन साल्ट ब्रिज का यह होगा कि साडा सैल सर्किट पूरा ही तां होगा जे साल्ट ब्रिज लगावांगे, क्योंकि साडे दोवें सोल्यूशन कंटैक्ट विच नहीं हैगे, तार दे राही इलैक्ट्रोड्स का कनैक्शन बन गया पर सोल्यूशन टच च नहीं आए। सोल्यूशनस नूं कंटैक्ट च लियाउण लई साल्ट ब्रिज की जरूरत पएगी। इसलिए पहला फंक्शन ये हो गया कि साल्ट ब्रिज विल कंप्लीट आवर सैल सर्किट, ये साडे सैल दे सर्किट नूं की करेगा, कंप्लीट करेगा। सो पहले पॉइंट की कली हैडिंग दे विच ये पॉइंट एक्सप्लेन हो जाता, उहदी भावें एक्सप्लेनेशन ना लिखियो, दूजे दी तुसीं लिख लईओ और तीजे दी भी हैडिंग एक्सप्लेन कर दूँगी कली। सो पहली तो एक्सप्लेन हो गया ना कि ये सैल सर्किट नूं कंप्लीट करता। सैकेंड काम है की करता, सैकेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। हुण साल्ट ब्रिज आखिर भरिया की आपां घोल भरे आ रजे, पोटैशियम नाइट्रेट हो सकता, पोटैशियम क्लोराइड हो सकता, अमोनीयम नाइट्रेट का इहदे विच घोल भरिया हुंदा। ये तिन्ने घोल इदां दे हुंदे आ, इन्हां नूं नॉन इलैक्ट्रोलाइट कहंदे आ। मतलब इलैक्ट्रोलाइट तो हैगे आ, नॉन रिएक्टिव आ, मतलब ये किसी नाल भी जाके जे भावें इधर भी आ जाए, भावें इधर भी चले जान, पर ये एक्सट्रा किसी भी रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते, बस इन्हां दा काम आ जिहड़ा उही करके उत्तों बाद खत्म हो जाने आ। ठीक है। सो साल्ट ब्रिज दे जिहड़े आयंस आ वो साडे चल रहे रिएक्शन नूं बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करते, बिल्कुल भी खत्म नहीं करते, कोई डिस्टरबेंस नहीं करते, बल्कि उन्हें चलाउण च हैल्प करते हैं। किद्दां? दूजी गल, इहदे इत्थे ना कॉटन प्लग लगे हुंदे आ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਨਸ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਨਸ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਵੱਧ ਗਏ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਆਇਨਸ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰੋਡ ਖੁਰੂਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ KCl ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, Cl ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਫਰੋਮ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਇਨਟੂ ਬੀਕਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪਰ ਆਇਨ ਘਟ ਗਏ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਗਏ, ਸਲਫੇਟ ਆਇਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ। ਸੋ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और उस तो बाद फिर दोबारा कॉपर आइनस से सल्फेट आयन की कॉन्सनट्रेशन की हो जूगी सेम। यानी जिहड़े आइनस साडे घोल दे विच वधदे आ उहनूं खत्म करन दे लई उन्ने ही ओपोजिट आयन सप्लाई करूगा साल्ट ब्रिज, ताकि दोबारा की बना दो न्यूट्रल। जो प्लस ते माइनस मिलणगे कंडीशन की हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। सो हुण तुहानूं साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्लीयर होया तो एक बार दोबारा सुन लो। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਖੁੱਲੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਇੱਥੇ ਵਧਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਿਊਟਰਲ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ऑफ द सैल नूं न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है वर्किंग करने दे लई। और सैल की वर्किंग कंटीन्यू रहिंदी है क्योंकि रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन इदां दी रिएक्शन आ एक बार शुरू करन तो बाद अपने आप ही कंटीन्यू रहणगे जब तक कि अपने कोल रिएक्टेंट हैगे। पूरी जिंक रॉड खुर नहीं जाती, रिएक्शन रुकेगा नहीं, लगातार इहदी वर्किंग की है चलती रहिंदी आ। सो इहदे वास्ते न्यूट्रल रहना चाहिए सैल नूं, तां न्यूट्रल बनाउण च कौन हैल्प करदा आ, साल्ट ब्रिज। सो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। देखो हुण क्लीयर हो गए तुहानूं दोने पॉइंट कि ये अपने सोल्यूशन नूं न्यूट्रल बनाउंदा आ और कंप्लीट करदा सैल सर्किट नूं, ठीक है। यही दो इंपॉर्टेंट इहदे फंक्शनस है। अगली तुसीं डेफिनेशनस लिखोगे, हाफ सैल किहनूं कहंदे आ, हुण मैं दोनों तुहानूं दसदे। हाफ सैल और दो तरह के हुंदे आ, ऑक्सीडेशन हाफ सैल एंड रिडक्शन हाफ सैल। जिस हाफ सैल दे विच ऑक्सीडेशन का प्रोसैस हुंदा, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदा, उहनूं ऑक्सीडेशन हाफ सैल कहंदे आ। जिहदे च गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन का प्रोसैस चल रहा उहनूं असीं रिडक्शन हाफ सैल कहंदे आ, ठीक है। इहदियां डेफिनेशनस कल्लियां कर लैणियां आपां ने। उस तो बाद आपां सैल दी रिप्रजेंटेशन जिहड़ी आ वो नैक्सट टॉपिक दे विच हैगी आ। हुण कुछ एग्जांपल्स दित्तियां होईयां, उहदे विचों फाइंड आउट करना आ कि तुसी राइट द हाफ सैल रिएक्शन लिखने आ। पूरी क्वेश्चन दे विचों कि आपां लिख सकांगे वो असीं ट्राई कर लैंदे आ। सो आ हुण मेरे हिसाब नाल समझ आ गई, तुहानूं कंप्लीट रिएक्शन पता लग गया। सो ये टॉपिक अच्छी तरह तैयार कर लो। हुण मैं दो की क्वेश्चनस तुहानूं दूंगी घरों करन दे लई कि आपां नूं ओहदे विचों हाफ रिएक्शनस लिखणियां आ जाणगियां, अद्धियां अद्धियां। देखो किद्दां लिखणियां, एक मैं सिखा दूँगी तुहानूं। सो पहला क्वेश्चन है साडे कोल 2Fe+3 आई क्वेश्चन है प्लस ये कन्वर्ट हो रही है टू आई नेगेटिव, ये मिल रही है एरो
अगले पासे हैगा 2Fe पॉजिटिव 2, ये आप लिख के देखनी है तुसी, प्लस इहदे नाल हैगा आ I2। हुण इहदे विचों तुसी इहनूं हाफ मतलब ही कंप्लीट दिता है, तुसी इहदे चों हाफ का मतलब एक ऑक्सीडेशन दी इक्वेशन लिख दो, एक किहदी लिख दो रिडक्शन। हुण तुसी आप तो पहला चैक करो कि तुहानूं ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन किहदे च लगदा, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन किहदे च लगदा, तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। इत्थों देख के पता लग जाएगा तुहानूं। देखो I नेगेटिव सी, वाधू इलैक्ट्रॉन सी, ओ की हो गया, खत्म हो गया, ਇਹਦਾ मतलब इन्हें इलैक्ट्रॉन लॉस करता, I2 बन गई। सो लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन की हो गया रिडक्शन। इदा अपन लभ जानी है रिडक्शन किहने कीती है, आ इक्वेशन कादी बन जानी तुहाडे कोल रिडक्शन दी, क्योंकि इहदे विच -1 इलैक्ट्रॉन सीगा तुहाडे कोल, पर हुण किन्ने ते चला गया, 0 ते चला गया। ਇਹਦਾ मतलब सॉरी इन्हें गेन नहीं किया, रिडक्शन नहीं, इनू की कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन की हो गया लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन, एक ही बन गया ऑक्सीडेशन। जे तुसी ऑक्सीडेशन नंबर भी देखोगे ना, नेगेटिव तो किधर ते चला गया 0। हुण दूजे पासे भी चेक कर लो, आ की हो गई 3 तो 2 घट गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, ये की हो जूगी रजे रिडक्शन। हुण दोनों रिएक्शंस को तुसी अलग अलग करके लिख लो। पहला असली हमेशा की लिखी दी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। एक ही रिएक्शन होया 2I नेगेटिव सीगा, इन्हें लॉस करना हो इधर दिखाईदा, गेन मोरले पासे दिखाईदा, तो 2 इलैक्ट्रॉन इन्हें विचों अपने कट के काच कन्वर्ट कर गया I2। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हुण तुसी रिडक्शन लिख के दिखा दो, बस अलग करके उन्हें लिखना ही आ, कट तो असीं लैनी आ। रिडक्शन किहड़ी हुई आ सी, हुण 2Fe + 3 सीगे, प्लस 2 इलैक्ट्रॉन गेन करनगे और 2Fe प्लस कादे च कन्वर्ट कर जाएंगे 2 दे विच। देखो 2 इलैक्ट्रॉन का गेन हो गया और 2 चार्ज अपने को नज़र आ गया। सो ये इस तरह तुसी इक्वेशन दे विच ऑक्सीडेशन अलग कर लेनी है, रिडक्शन जी है अलग करके लिखनी है। नैक्सट इक्वेशन हैगी आ, बस 3 इक्वेशन ही आ, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लग लेनी है, फिर उन्होंने हाफ सेल में लिख देना। दूसरी इक्वेशन है जिंक प्लस 2H पॉजिटिव एरो Zn प्लस 2 प्लस H2। फटाफट रिडक्शन ऑक्सीडेशन लभ लो। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ਇਹਦਾ 0, देखो किदा बढ़िया किदा घटिया, आ +1 तो कितने चलेगी +2, एक ही होगी रजे ऑक्सीडेशन। जिथे लॉस होगा वो रिडक्शन होएगी। जिंक तो सॉरी निशान गलत लग गया, H तो लाता आपने जिंक वाल, दोबारा करिए। जिंक 0 तो किन्ने ते चली गई रजे 2 दे उत्ते, इत्थे गेन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, प्रोसैस की हो गया ऑक्सीडेशन। इत्थों +1 तो 0 डिक्रीज हो गया, एक ही हो गई रिडक्शन। उन दोनों को कट के अलग अलग लिख लो। जब ऑक्सीडेशन लिखनी है जिंक इधर लिखना, लॉस इधर दिखाना। Zn + 2 जिधर आयंस बननगे इलैक्ट्रॉन उधर ही लिखी दे आ, 2 इलैक्ट्रॉन का लॉस हो गया। दूजी इक्वेशन उल्टा के लिख लो, 2H पॉजिटिव आ प्लस इधर पासे इलैक्ट्रॉन्स ऐड कर दो तो काच कन्वर्ट हो गया H2। सो इस तरह 2 रिएक्शन आप सैपरेट करके लिखने, ठीक है जी। नैक्सट लास्ट इक्वेशन आ, ये तिन्ने कर ली। थर्ड हैगी आ एल्यूमीनियम सॉलिड प्लस 3 Ag पॉजिटिव एरो, अगे बन गया एल्यूमीनियम +3 प्लस 3 Ag। हाँ जी ये क्वेश्चन आ। सो ये हम देखो एल्यूमीनियम 0 लिख लो, आ +1 है +3 है, आ भी की हो गया 0। हम देख लो एल्यूमीनियम 0 तो कितने चलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। सो इसलिए प्रोसैस कादा हो गया जी ऑक्सीडेशन। जी ऑक्सीडेशन नंबर घटदा होवे वो की बन जूगी रिडक्शन। फिर दोनों को सैपरेट करके बस इलैक्ट्रॉन्स ही ऐड करने, तुसी होर कोई काम नहीं करना। एल्यूमीनियम एरो, एल्यूमीनियम J+3, इत्थों पता लग जू तुहानूं किन्ने इलैक्ट्रॉन्स इन्हें देने हैं, 3 कड्ढे आ तो 3 प्लस चार्ज शो हो रहा है, तो 3 इलैक्ट्रॉन का लॉस कर दो। ये प्रोसैस की हो गया तुहाडा ऑक्सीडेशन। ये उल्ट फिर तुसी रिडक्शन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, फिर इत्थों लिख लो 3 Ag पॉजिटिव ने 3 इलैक्ट्रॉन्स लैके 3 Ag कन्वर्ट कर दी। सो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ रिडक्शन। सो ये तरह तुसी ऑक्सीडेशन की रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं। इत्थे तक टॉपिक क्लीयर कर लियो, रिस्पॉन्स भेज दियो, फिर अपन नैक्सट टॉपिक करेंगे। ऑल द बेस्ट।